اداکار رام چرن نے ریاست آندھرا پردیش کے کڑپا کی امین پیر درگاہ پر حاضری دی۔ ذرائع نے بتایا کہ امین پیر درگاہ کے عرس کے سلسلے میں 80واں قومی مشاعرہ و غزل پروگرام منعقد ہوا تھا، جس میں اداکار رام چرن بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ دریاسنا ایپا سوامی کی دیکشا کرنے کے باوجود رام چرن نے درگاہ پر حاضری دی اور اتحاد و ہم آہنگی کا پیغام دیا۔ اداکار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہاں پہ ہجوم دیکھا گیا اور افراتفری مچ گئی، کیونکہ مداحوں کو سنبھالنے کے لیے پولیس کو شدید مشکلات پیش آئی اور لاٹھی چارج بھی کرنا پڑا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ہندوستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم اندرا گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر ان کی تصویر پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ہندوستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم اندرا گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جوبلی ہلز میں واقع اپنی رہائش گاہ پر اندرا گاندھی کی تصویر پر پھول چڑھائے اور انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر کنٹونمنٹ کے MLA شری گنیش کے علاوہ دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ تلنگانہ دلت بندھو سادھنا سمیتی کے صدر کے مہیش نے دلتوں کے تئیں حکومت کے رویے کو ناقابل برداشت قرار دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ تلنگانہ ریاستی دلت بندھو سادھنا سمیتی کے صدر کوگیلا مہیش کو ہنم کنڈا میں پولیس نے آرٹس کالج کے قریب سے گرفتار کرتے ہوئے حسن پرتی پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ دریاسنا انہوں نے دلتوں کے تئیں حکومت کے رویے پر اعتراض کیا ہے اور اسے ناقابل برداشت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی گرفتاریوں اور بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد دوسرے مرحلے کے تحت دلت بندھو فنڈز حاصل کیے جائیں گے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی یوم پیدائش پر کہا کہ اندرا گاندھی کے عزائم سے متاثر ہو کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ریاست میں اندرا ماں کی حکومت قائم کی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اندرا ماں سے متاثر ہو کر خواتین کے لیے اسکیمات فراہم کی جا رہی ہیں اور جب کانگریس اقتدار میں آئی تو خواتین کو کئی سہولیات مہیا کروائی گئی۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ اندرا گاندھی کے عزائم سے متاثر ہو کر ہی تلنگانہ حکومت آگے بڑھ رہی ہے اور جو لوگ تاریخ سے واقف نہیں ہیں وہ اندرا گاندھی کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جن میں حب الوطنی نہیں ہے وہی اندرا گاندھی پر تنقیدیں کیے جا رہے ہیں، جبکہ اندرا گاندھی کے خاندان نے ملک کے لیے اپنی جان قربان کر کے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ بھٹی وکرمارکا نے جامع خاندانی سروے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کمزور طبقات کے لیے کیا جا رہا ہے اور ریاست کے تمام لوگوں کو وسائل فراہم کرنے کے لیے سروے ہو رہا ہے۔ پورا ہندوستان تلنگانہ کی سمت دیکھ رہا ہے۔ سروے کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ سرکاری اسکیمات تمام طبقوں تک یکساں طور پر پہنچے۔ భారత రత్న శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ వారి జయంతి ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటున్నాం. కేవలం ఆనాటి ప్రధానమంత్రిగానే కాకుండా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కోట్లాది మంది ప్రజానికానికి తల్లిగా ఈ దేశ ప్రజలు ఎదుర్కొన్న అనేక సమస్యల పరిష్కారం చూపించినటువంటి ఒక గొప్ప మాతృమూర్తిగా ఈ దేశ ప్రజలందరూ ఇప్పటికి కూడా వారిని గౌరవిస్తూ ఉంటారు. వారు తీసుకొచ్చినటువంటి భూ సంస్కరణ కానీ, బ్యాంకుల జాతీయకరణం కానీ, లేకపోతే రాజభరణాలు రద్దు కానీ, ఈ దేశంలో 20 సూత్రాల ఆర్థిక కార్యక్రమాలతో ఈ దేశ ప్రజల అభివృద్ధి కోసం వారు వేసినటువంటి పునాదులు కానీ మనందరికీ ఒక స్ఫూర్తిదాయకం. శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు ఈ దేశంలో పుట్టడం భారతదేశ గర్వకారణంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. కాంగ్రెస్ పార్టీకి వారు నాయకురాలుగా ఉంటూ ఆనాటి స్వాతంత్ర సంగ్రామ పోరాటంలో పనిచేసినటువంటి అనేక మంది పెద్దలతో చిన్న వయసులోనే వారందరితో పనిచేస్తూ వారి స్ఫూర్తితో ఈ దేశ ప్రజల ఆకాంక్షలన్నింటినీ నెరవేర్చడం కోసం పనిచేసినటువంటి గొప్ప దార్శనికురాలు. అటువంటి దార్శనికురాలు చివరికి ఈ దేశ సమగ్రత సమైక్యత కోసం తన ప్రాణాలైనా పణంగా పెడతానని చెప్పి ఆనాడు ఒరిస్సాలో మాట్లాడినటువంటి మాటలన్నింటినీ కూడా మనందరం ఈ దేశ ప్రజలందరూ గమనించాల్సి. ఆ రకంగానే ఈ దేశ సమగ్రత సమైక్యత కోసం ఆటంకవాదుల చేతుల్లో ریاستی وزیر جنگلات کونڈا سریکھا نے کانگریس کو خاتون دوست پارٹی قرار دیا ہے۔ ہندوستان کی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی یوم پیدائش تقریبات ورنگل شہر میں منعقد کی گئی۔ وزیر جنگلات کونڈا سریکھا نے اندرا گاندھی کے مجسمے پر پھول چڑھا کر
उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कोंडा सुरेखा ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत करोड़ों खवातीन को करोड़पति बनाने का मंसूबा बना रही है और इंदिरा गांधी जयंती के मौके पर जिले वरंगल में इंदिरा महिला शक्ति की 220 इमारतों का संगे बुनियाद रखा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खातून दोस्त पार्टी है। पिछली बीआरएस हुकूमत पर कोंडा सुरेखा ने वरंगल को तरक्की न देने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वरंगल हमेशा से कांग्रेस का पसंदीदा रहा है। वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में वरंगल की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। रियासत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में खाना खाने के बाद गुरुकुल के 25 तलबा बीमार हो गए। रियासत तेलंगाना की तरह रियासत आंध्र प्रदेश में भी गुरुकुल के तलबा समियत ग़िज़ा खाने के बाद मुतासिर होने लगे हैं और अस्पतालों में उन्हें भर्ती किया जा रहा है। ताज़ा तरीन वाक़या नेल्लोर के चंद्रशेखरपुरम गुरुकुल स्कूल से सामने आया है। बताया जाता है कि स्कूल के तमाम तलबा ने खाना खाया और कुछ ही देर बाद 25 तलबा को उल्टी और इसहाल की शिकायत हो गई, जिसके बाद स्कूल में डॉक्टर्स ने उन तलबा का इलाज किया। डॉक्टर्स का कहना है कि मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद ही उन तलबा को छुट्टी दी जाएगी। कोडंगल के लागाचर्ला में नाखुशगवार वाक़या पेश आने के एक हफ्ते बाद भी पाबंदियां बरकरार हैं। पुलिस ने खवातीन तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान को लागाचर्ला और रोटी बंदर तांडा जाने से और मुतासिरा खानदानों से बात करने से रोक दिया। लागाचर्ला में नाखुशगवार वाक़यात पेश आने का एक हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन बताया जाता है कि गांव और आसपास के गांवों में पाबंदियां हुनूस बरकरार हैं। मंगल के रोज़ खवातीन तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान ने लागाचर्ला और रोटी बंदा तांडा जाने और मुतासिरा खानदानों से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें इजाज़त नहीं दी और रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान खवातीन अरकान और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार भी हुई। जेसी अराकीन ने हुकूमत और पुलिस की ज़्यादतियों की मजम्मत करते हुए सवाल किया है कि उन्हें गांव का दौरा करने और वहां की खवातीन से बातचीत करने से क्यों रोका जा रहा है। जेसी मेंबरान बशमूल संध्या, पद्मजा शाह, सिस्टर लेजी, झांसी, अनुसुईया, गीता व दीगर ने आदिवासी किसानों खासतौर पर खवातीन के साथ पुलिस और हुकूमत के जरिए किए जाने वाले मजालिम के बारे में बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। मेंबर्स ने यह भी बताया कि एक फैक्ट फाइंडिंग स्टडी है जो जेसी के जरिए लागाचर्ला और रोटी बंदा तांडा में की जा रही है। उनका कहना था कि दौरा करने से पहले जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एमएलसी कोदंडाराम से भी बातचीत की गई, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बुमरासपेट मंडल के टंकी मेडला गांव में ही पुलिस ने रोक दिया। सेवालाल सेना के बानी संजीव नायक ने कबायलियों पर हमले के वाक़यात पर कांग्रेस एमपी बलराम नायक और एमएलए रामचंद्र नायक पर तनकीद की है। संजीव नायक ने कबायलियों पर हो रहे हमलों पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस एमपी बलराम नायक और एमएलए रामचंद्र नायक को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कबायलियों पर वहशियाना हमले हो रहे हैं और एमपी बलराम नायक और एमएलए रामचंद्र नायक खामोश तमाशाई बने हुए हैं, हालांकि दोनों का ताल्लुक भी कबायली तबके से ही है। उनका कहना था कि कांग्रेस के कायदीन रेवंत रेड्डी के कठपुतली बन गए हैं। संजीव नायक ने इंतबाह दिया है कि कबायलियों के साथ गद्दारी करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। तेलंगाना के वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने रईतु नेस्टम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और किसानों से अनाज और कपास की खरीदारी से मुताल्लिक़ बातचीत की। हुकूमत तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम रईतु नेस्टम प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर किसानों से बातचीत की, उनसे अनाज और कपास की खरीदारी से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की। दनी असना हुकाम ने किसानों को फसल की बाक़ियात जलाने के ख़तरात से आगाह किया। वज़ीर ज़राअत ने रियासत भर के खरीदारी मराकज़ और CCI सेंटर्स पर किसानों और ओहदेदारों से बातचीत करते हुए तमाम तर तफसीलात हासिल की हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू की रिहाइशगाह के रूबरू एक खातून ने खुदकुशी की कोशिश की। ज़राए ने बताया कि तिरुपति की रहने वाली यशोदा नामी खातून नारवारीपल्ली में चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के लिए गई तो उसे इजाज़त नहीं दी गई। जब खातून ने ज़बरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे रोक दिया। इस अमल से नाराज़ यशोदा ने अपने हाथ में पहनी
चूड़ियां तोड़ी और कांच के टुकड़ों को निगलकर खुदकुशी करने की कोशिश की। वहां मौजूद पुलिस एहलकार फौरन हरकत में आ गए और खातून को रोक दिया। उसे फौरन गिरफ्तार करके चंद्रागिरी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बताया गया है कि बाद में खातून की रिहाई अमल में लाई गई। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हजारों कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को एक बड़ा कानूनी धचका देते हुए मुख्तलिफ महकमों में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की खिदमात को मुस्तकिल करने वाले गवर्नमेंट जियो 16 को मनसूख कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के रेगुलराइजेशन को गैर आईनी करार दिया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ऐलान किया है कि पिछली रियासती हुकूमत के जरिए किए गए रेगुलराइजेशन के अमल, जिसमें तालीम और तिब्बी शोबों में बड़ी तादाद में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन शामिल थे, आईनी दफात की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजमीन के तौर पर रेगुलराइज करने का अमल कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है और इससे जियो नंबर 16 को मौसर तौर पर कलअदम करार दिया जा सकता है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ सरकारी महकमों में असातिज़ा, हेल्थ वर्कर्स और अमला समेत हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलराइज करने के लिए जियो जारी किया गया था। इस फैसले का मकसद कई सालों से आर्जी माहिदों पर काम करने वालों को सहूलियात मुहैया करवाना था। हाई कोर्ट के इस फैसले से बहुत से मुलाजिमीन परेशान हो गए हैं। जियो नंबर 16 की मनसूखी के साथ उन कारकुनों को अब रेगुलराइजेशन के फवायद के बगैर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के तौर पर काम करना पड़ेगा। इस फैसले ने उन हज़ारों मुलाजमीन में बड़े पैमाने पर तशवीश पैदा कर दी है जो खास तौर पर तालीम और सेहत के शोबों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हैदराबाद के मातृ देवा भवा यतीम खाने में उस वक्त जज्बाती मनाज़र देखने को मिले जब 2 बेटियां 6 साल बाद अपने वालिद को देखकर जज्बाती हो गई। ज़राए ने बताया कि मातृ देवा भवा नामी यतीम खाना 130 बच्चों की पनाहगाह है। 6 साल पहले बालाया नामी एक शख्स जो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा था, जुबली हिल्स के पेद्दामा मंदिर के इर्द गिर्द घूम रहा था। उसे मातृ देवा भवा की इंतजामिया ने पनाह दी थी और वो 6 साल से वहीं रह रहा था। बलैया की बेटियां अपने वालिद की तलाश में थी और वो मातृ देवा भवा भी आ चुकी थी। बताया गया है कि दोनों बेटियां यतीम खाने में अन्नदानम के लिए पहुंची तो वहां अपने वालिद को देखकर जज्बाती हो गई और उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ी। ताहम बलैया उन्हें देखकर खौफजदा हो गया। आश्रम इंतजामिया ने बलैया को बताया कि वो दोनों उसकी बेटियां हैं, उसे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। बताया गया है कि बलैया के अफराद ख़ानदान ने इंतज़ामिया की शराइत पर अमल किया और अपने वालिद को घर ले गई। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के अहदेदारों ने वनस्थलीपुरम के एक मेडिकल शॉप पर छापा मारकर गुमराहकुन दावा करते हुए फरोख्त की जाने वाली आयुर्वेदिक दवा रोमेरिक कैप्सूल जब्त कर ली है। डीसीए के डायरेक्टर जनरल वीबी कमला सेन रेड्डी ने बताया कि अहदेदारों को इतला मिली थी कि रोमेरिक कैप्सूल नामी आयुर्वेदिक दवा गठिया के इलाज के लिए मौसर होने का दावा करते हुए फरोख्त की जा रही थी, जो कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1951 की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने बताया कि डीसीए के अहदेदारों ने रंगारेड्डी जिले के हयात नगर मंडल के वनस्थलीपुरम में एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारा और अद्वियात का बड़ा जखीरा जब्त कर लिया। आपको बता दें कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत गठिया के इलाज के लिए किसी भी दवा का इश्तिहार ममनू है। हयात नगर के ड्रग इंस्पेक्टर एल राजू ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया। अहदेदारों ने बताया है कि इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात की जाएंगी और तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने टोल फ्री नंबर 6969 599 1800 के ज़रिए रिहायशी या फिर तिजारती या सनती इलाकों में मंशियात से मुताल्लिक़ किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की इतला देने की अपील की है। बीआरएस रहनुमा पी कार्तिक रेड्डी ने मरकजी वजीर बंडी संजय से कहा है कि वो सीबीआई तहकीकात के जरिए ये मालूम करें कि लागतशर्ला वाक़े के लिए कौन जिम्मेदार है। पी कार्तिक रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बंडी संजय जज बन गए हैं। हर 2-3 बाद वो और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिलकर इस बात पर तबादला ख्याल करते हैं कि केटीआर का क्या किया जाना चाहिए और उन्हें किस तरह से गिरफ्तार करना चाहिए।
पी कार्तिक ने कहा कि बंडी संजय कह रहे हैं कि लागा चरला हमले के पीछे नरेंद्र रेड्डी और केटीआर का हाथ है। मरकजी माविन वजीर दाखिला के तौर पर वो सीबीआई इंक्वायरी करवाएं और ये मालूम करें कि इस वाक़े के पीछे कौन है। బీఆర్ఎస్ పార్టీ అంతా విధ్వంసకరమైన పార్టీ అంట, దాన్ని బ్యాన్ చేయాలంట. లగచర్ల జరిగిన ఇన్సిడెంట్లో కొడంగల్లో బండి సంజయ్ గారు నిర్ధారించేసారు, ఆయనే జడ్జి అయిపోయారు. నిర్ధారిస్తూ ఏం చెప్తాడు, ఇది చేపించింది బీఆర్ఎస్ పార్టీయే, దీని వెనకాల ఉన్నది ముమ్మాటికి నరేందర్ రెడ్డి గారే, దాని వెనకాల ఉన్నది కేటీఆర్. కేటీఆర్ అరెస్ట్ చేయకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ మరియు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒకటే. మీరు కేటీఆర్ని అరెస్ట్ చేస్తలేరు కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీతో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి పొత్తున్నదేమో అనే విధంగా బండి సంజయ్ గారు మాట్లాడుకుంటూ వచ్చిండ్రే. చాలా విచిత్రమైన పరిస్థితి తెలంగాణలో. ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయడం ఒక గవర్నమెంట్ పాలసీగా మారిందంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా ఇరు పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు ఉన్నారు. దాంట్లో బీజేపీకి సంబంధించిన కేంద్ర సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ గారు కేటీఆర్ని అరెస్ట్ చేయమనడం, ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి 2-3 రోజులకు ఒకసారి కేటీఆర్ అరెస్ట్ ఎలా చేద్దాం ఎట్లా చేద్దామని ఆలోచన చేయడం, రాష్ట్రంలో ఉన్న పెద్ద నాయకులు కేంద్ర మంత్రి ఒక ముఖ్యమంత్రి ఇద్దరు కూడా రాష్ట్రానికి ఎట్లా మంచి చేయాలన్న ఆలోచన పక్కన పెట్టి కేటీఆర్ని ఎట్లా అరెస్ట్ చేయాలా అని పెట్టుకున్నారంటే ఎంత నాన్ సీరియస్గా వీళ్ళు వాళ్ళ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారనే విషయం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలా. బండి సంజయ్ గారు నిజంగా మీరు అనుకుంటున్నారు కదా దాంట్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ పాత్ర ఉన్నది, నరేందర్ రెడ్డి గారి పాత్ర ఉన్నది, దాని వెనకాల కేటీఆర్ గారి పాత్ర ఉందని మీరు అంటున్నారు కదా. మీరు భారతదేశ హోంశాఖ సహాయ మంత్రి, మీరు సిబిఐ నుంచి ఎంక్వైరీ చేయిస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరండి. సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేసి లగచర్ల వెనకాల అసలు ఏం జరిగింది, ఎవరు హస్తం ఉన్నది, ఎవరి కోసం భూములు వాళ్ళు అక్వైర్ చేస్తా అంటున్నారు, ఇవన్నీ కూడా నిగ్గు తేల్చండి అంట. నేను సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేయించండి, వేయించి అసలు లగచర్ల ఇన్సిడెంట్ వెనకాల ఎవరు ఉన్నారు, ఎవరు హస్తం ఉన్నది, ఇదన్నీ కూడా ఒక తేల్చే ఒక ప్రయత్నం చేయండి. तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के नवमुंतखब बोर्ड ने अपने पहले इजलास में गैर हिंदू मुलाजमीन के तबादले का फैसला किया है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के नवमुंतखब बोर्ड का पहला इजलास तिरुमला के अन्नामाया भवन में चेयरमैन BR नायडू की सदारत में मुनक्किद हुआ। पहले इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर उन मुलाजमीन के तबादले या रिटायरमेंट का फैसला लिया गया है जो हिंदू मज़हब के अलावा दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। बोर्ड के फैसलों से मीडिया को वाकिफ करवाते हुए TTD चेयरमैन ने वाज़ेह किया कि गैर हिंदू मुलाजमीन को TTD के लिए काम जारी रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्हें रज़ाकाराना तौर पर सुबुकदोश होने का इख्तियार दिया जाएगा या दूसरे महकमों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो करारदाद मंजूर की गई है उसे आगे की कार्रवाई के लिए रियासती हुकूमत को भेजा जाएगा। दीगर फैसलों के मुताबिक चेयरमैन ने निशानदही की कि कई VIP जिनमें ज़्यादातर मुख्तलिफ पार्टियों के सियासी रहनुमा हैं तिरुमला में लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के बाद मीडिया के सामने सियासी मसाइल पर बात करते हैं। बोर्ड ने सियासत से मुताल्लिक़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त ना देने का फैसला किया है। उन्होंने ऐलान किया कि मुक़द्दस मकामात में सियासत करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। नायडू ने कहा कि मसनवी ज़हानत के इस्तेमाल का जायज़ा लेने के लिए एक माहिर कमेटी भी तश्कील दी जाएगी ताकि अक़ीदतमंदों के लिए लॉर्ड वेंकटेश्वर के दर्शन को 2 या 3 घंटों के अंदर यकीनी बनाया जा सके और लोगों को घंटों लंबी कतारों में इंतज़ार न करना पड़े। नए मुक़र्रर करदा बोर्ड के पहले इजलास में कई दीगर अहम फैसले भी लिए गए हैं जिसमें पिछली वायएसआर हुकूमत के साबिक़ा बोर्ड के ज़रिए मंजूर करदा मुतनाज़ा करारदाद को मनसूख करना भी शामिल है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।